Jai Swaminarayan everyone, good morning to you all. Today in 12th standard commerce we are going to learn one more topic in economics and it is about measurement of absolute poverty in India. यानी कि जो पावर्टी का लेवल था वो इंडिया में कितने तक था उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे आज. तो in the 68th round of NSSO, that is National Sample Survey Organization, using per joint family expenditure data, Tendulkar committee estimated that in India in the year 2004 and 5, the measurement of absolute poverty was 37.2%, which reduced to 21.9% in the year 2011 and 12. तो तेंदुलकर कमेटी जो है उन्होंने एनएसएस का जो रिपोर्ट था, जो पर जॉइंट फैमिली एक्सपेंडिचर के ऊपर जो रिपोर्ट था उसका यूटिलाइजेशन करते हुए उन्होंने एक एस्टिमेट निकाला कि इंडिया में कितने लेवल तक पावर्टी थी इन द ईयर 2004 and 5 एज वेल एज इन द ईयर 2011-12. So in the year 2004 and 5, the measurement of absolute poverty was 37.2. यानी कि 2004 और 5 में जो एब्सोल्यूट पावर्टी का जो लेवल है वो 37.2% था, जो रूरल और अर्बन एरिया दोनों को मिलाकर निकाला गया था. और इससे आपको ये पता चलता है कि कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बिलो पावर्टी लेवल के नीचे था, यानी कि गरीबी के रेखा के नीचे जी रहा है. सो इट वाज रिड्यूस्ड टू 21.9% in the year 2011-12. यानी जो पहले 2004 और 5 में ये एब्सोल्यूट पावर्टी का लेवल जो रूरल और अर्बन एरिया में 37.2% था वो घटकर नीचे आ गया था 2011 और 12 में बाय 21.9%. So here also you can see by the table the poverty level in the rural and urban area. So measurement of poverty in India is done by percentage, and here you can see the poverty level in percentage in the rural and urban area as well as its total. This is one of the economic survey which is being done in the year 2015 and 16. In rural India, the measurement of poverty in the year 2004 and 5 was 41.8%, which reduced to 25.7% in the year 2011 and 12. तो 2004 और 5 के अंदर जो पावर्टी लेवल था वो 41.8% था, जो बाद में रूरल एरिया में जो बाद में घट के 25.7% हो गया था 2011 और 12 में. यानी कि जो एब्सोल्यूट पावर्टी का लेवल जो रूरल एरिया में 41.8% था इन द ईयर 2004 और 5 में वो घटकर 2011 और 12 में 25.7% हो गया. और दूसरी जो चीज है, whereas in urban area the measurement of poverty was 25.7% in the year 2004 and 5, which reduced to 13.1% in the year 2011 and 12. तो अर्बन एरिया यानी कि शहरी विस्तारों में जो पावर्टी लेवल जो एब्सोल्यूट पावर्टी लेवल जो था वो 25.7% था इन द ईयर 2004 एंड 5 में, जो फिर बाद में घट के 2011 और 12 में 13.7 की रेंज में आ गया. So this is the report that is related to absolute poverty, and you can see the total of both, that is 37.2 and 21.9, which is showing the absolute level of poverty in our country.
that is being represented here also. State-wise magnitude of poverty in 12th standard economics. So the state-wise magnitude of poverty shows the level of poverty in different states. तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट में कितना पावर्टी का लेवल है उसको प्रेजेंट किया गया है एक टेबल के थ्रू। यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पावर्टी लाइन, यानी कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कितना परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट पावर्टी है, उसको इस टेबल के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। So the percentage of population that is living below the poverty line means there is absolute poverty among these states. So below 10%, यानी कि 10% के नीचे पावर्टी जो एब्सोल्यूट पावर्टी लाइन वाले देश हैं वो है गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे जो एब्सोल्यूट पावर्टी है उसका जो लेवल है वो बिलो 10% है। दूसरा 10 to 20% means the 10 to 20% population which is living below the poverty line in which of the states that is being represented here. So the 10 to 20% of poverty means the population that is living below the poverty line, or 10 to 20% of absolute poverty can be found in these states, that is Jammu and Kashmir, Haryana, Tamil Nadu, Gujarat, Rajasthan. In these states the absolute poverty level is between 10 to 20%. Now 20 to 30% of absolute poverty can be found in these states, that is West Bengal, Mizoram, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। यानी कि यहाँ पे जो एब्सोल्यूट पावर्टी जो आप परसेंटेज में प्रेजेंट कर सकते हो वो 20 to 30% है इन स्टेट में, जो थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इन दो स्टेट्स के। नाउ 30 to 40%, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो पावर्टी एब्सोल्यूट पावर्टी का लेवल है वो इन स्टेट्स में आप पाया जा सकता है, जो है मध्य प्रदेश, आसाम, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट पावर्टी का जो लेवल है या फिर जो पॉपुलेशन जो पावर्टी गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं उनकी संख्या परसेंटेज के हिसाब से यहाँ इन स्टेट्स में थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि मध्य प्रदेश, आसाम, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। जबकि सबसे कम जो है एब्सोल्यूट पावर्टी का लेवल वो गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में है। सो after showing this table you also need to give the explanation with regard to this table. You can state that according to the annual report of 2030 among various states of India, Goa has the lowest poverty which is 5.09%, and the highest measurement of poverty is for Chhattisgarh which is 39.93%. तो इन ये जो एक सर्वे था जो 2030 के रिपोर्ट के हिसाब से, उसके एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से सबसे कम जो एब्सोल्यूट पावर्टी का लेवल है वो गोवा में, यानी कि गोवा में सबसे लोवेस्ट पावर्टी लेवल को फाइंड आउट किया गया था जो 5.09% था 2013 में, और सबसे हाईएस्ट पावर्टी का लेवल जो है वो मेजर किया गया था छत्तीसगढ़ में which was 39.93%, which was quite high in comparison to other states. It's related to relative poverty, and this topic is there in the unit that is related to poverty. So
commonly in every economy, income disparity is seen. In that case, lower income classes is considered relatively poorer than the higher income classes. तो यहाँ पे हर एक इकोनॉमी में आपको थोड़ा इनकम से लेके थोड़ा डिस्पैरिटी देखने को मिलेगा, थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो लोअर इनकम क्लासेस जो है वो उनकी इनकम जो है वो अपर इनकम क्लासेस यानी कि हायर या रिच पीपल के क्लास के कंपैरिजन में उनकी इनकम जो है वो थोड़ी लोअर होती है। और इसको आप रिलेटिव पॉवर्टी में इस चीज़ को स्टडी किया जाता है। द इनकम डिफरेंट इनकम ग्रुप्स एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज स्टडीड इन रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी में अलग अलग इनकम ग्रुप्स को स्टडी किया जाता है। इसके अलावा जो उनके इनकम में जो डिस्पैरिटी होता है उसको कंसिडर किया जाता है या फिर उसे स्टडी करते हैं। डेपिक्ट्स द लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी अमंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल। तो जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो ये शो करता है कि अलग अलग इनकम ग्रुप्स जो है उनमें कैसी इनकम की इनइक्वालिटी है, यानी कि इनकम में कैसी असमानता है, उसको रिलेटिव पॉवर्टी के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। Once again I am going through this, that is commonly in every economy income disparity is seen. In that case lower income classes is considered lower, relatively poor than the higher income classes. आपको एक डिस्पैरिटी, एक विभिन्नता हर एक इकोनॉमी में देखने को मिलती है, जहाँ पे कुछ लोअर इनकम क्लासेस जो होते हैं उनकी कंपैरिजन में हायर इनकम क्लासेस का जो इनकम रहता है वो हाई होता है, या फिर आप कह सकते हो कि लोअर इनकम क्लासेस इज कंसिडर्ड रिलेटिवली पुअर देन द हायर इनकम क्लासेस, क्योंकि लोअर इनकम क्लासेस के पीपल का जो इनकम रहता है वो थोड़ा कम रहता है, इसलिए उनको हायर इनकम क्लासेस के कंपैरिजन में थोड़ा पुअर या फिर गरीब कह सकते हैं। इसमें रिलेटिव पावर में ये चीज़, रिलेटिव पॉवर्टी में ये चीज़ कंसिडर करते हैं। सो रिलेटिव पॉवर्टी टेक इनटू कंसिडरेशन डिफरेंट इनकम ग्रुप्स, अलग अलग इनकम ग्रुप्स को कंसिडर करता है। इसके अलावा जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है जो डिफरेंट इनकम ग्रुप्स में होता है उसको प्रेजेंट करता है और उसको स्टडी करता है। Depict the level of income inequality among different classes of people. जो अलग अलग इनकम ग्रुप्स में जो लेवल ऑफ इनइक्वालिटी है उसको प्रेजेंट करता है रिलेटिव पॉवर्टी, या फिर उस चीज़ को कंसिडर किया जाता है रिलेटिव पॉवर्टी में, यानी कि अलग अलग इनकम ग्रुप में किस लेवल का इनइक्वालिटी अराइज हो रहा है उस चीज़ को रिलेटिव पॉवर्टी में कंसिडर करते हैं। So here one example is being shown by the way of table. Here different income groups is being presented by the way of group 1, group 2, group 3, group 4, and the group is earning different level of income also, that is 0 to 30,000, 30,000 to 1 lakh, 1 lakh to 3 lakh, 3 lakh to 10 lakh, and 10 lakh and above. In the above example, the classes of group 2 has more income than the class income of people in group 1. इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो ग्रुप 2 है वो comparatively richer है from in comparison to the group 1. तो यहाँ पे जो ग्रुप 2 है उसका इनकम 30,000 to 1 lakh है, इस वजह से वो ग्रुप 1 के कंपैरिजन में थोड़ा रिचर हुआ, और जो ग्रुप 1 है दैट इज कंपैरेटिवली पुअर इन कंपैरिजन टू ग्रुप 2. सो इट इज शोइंग द रिलेटिव पॉवर्टी अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. So it can be said that the people in group 1 are relatively poorer than the people in the group 2. इसके जरिए आप रिलेटिव पॉवर्टी को समझ सकते हो कि जो लोग ग्रुप 1 में है वो ग्रुप 2 की कंपैरिजन में थोड़े रिलेटिवली पुअर है। सो इस टर्म को आप इस एग्जाम्पल के जरिए भी प्रेजेंट कर सकते हो।
but the people of group 2 has lower income than the income of people in group 3, 4 and 5. Hence people of group 2 are relatively poor than the group 3, 4 and 5. तो यहाँ पे जो ग्रुप 2 है उनके कंपैरिजन में ग्रुप 3, 4 और 5 के जो ग्रुप है वो कंपैरेटिवली रिचर या अपर है, हायर इनकम अर्निंग ग्रुप है, बिकॉज वो 1 lakh to 3 lakh the group 3 is earning and group 4 is earning 3 lakh to 10 lakh while the group 5 is earning 10 lakh to and above. So it can be considered relatively richer or relatively higher income is earned by this group in comparison to the group 2. So group 2 can be considered comparatively poor than this above 3 groups or this below 3 groups. यानी कि ग्रुप 2 जो है वो 3, 4 और 5 ग्रुप की कंपैरिजन में थोड़ा पुअर है, ऐसा कह सकते हैं. So that is once again showing relative poverty. So formation of income group, Lorenz curve and Gini coefficient are useful in order to measure the relative poverty in the economy. अगर आप इकोनॉमी में रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनकम का जो फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, जो इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो. या फिर ग्रुप लोरेंस कर्व भी एक मेथड है जिससे कि रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर किया जा सकता है. एंड जीनी कोएफिशिएंट आर यूजफुल. जीनी कोएफिशिएंट भी एक तरह की मेथड है जिससे कि आप रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर कर सकते हो. तो रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो एक कंपैरिजन क्रिएट करता है अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल में, उनकी इनकम के बीच में एक कंपैरिजन क्रिएट करता है जिससे कि आपको ये पता चलता है कि कौन सा ग्रुप किस ग्रुप की कंपैरिजन में थोड़ा रिलेटिवली पुअर है. थैंक यू.